भारत माता की বন্দে বন্দে। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভদ্রমণ্ডলী, শিল্পনগরী শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যের মেলবন্ধন এই দুর্গাপুর তথা অবিভক্ত বর্ধমানের সমস্ত সুনাগরিকগণকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। অনেক মায়েরা এসেছেন, বোন দিদিরা এসেছেন। না জাগিলে ললনা, এই বিশ্ব জাগে না। আমার মাতৃশক্তি, দেবী শক্তি, নারী শক্তিকে আমি বন্দন করি, প্রণাম করি। আমরা সবাই এই শীতের সন্ধ্যায় এখানে মিলিত হয়েছি একটি আদর্শ নিয়ে, একটি স্বপ্ন নিয়ে, কমল মেলাতে, যার শুভ হস্তে এই মেলা উদ্বোধন হয়েছে। ভারত মাতার মূর্তিতে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে যিনি প্রণাম জানিয়েছেন, প্রজ্বলিত শিখার মধ্য দিয়ে যে মেলা এখানে উদ্বোধন হলো, এটি একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়, এটি কর্পোরেট দ্বারা আয়োজিত মেলা নয়। রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতিকে যারা রক্ষা করতে যান তারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। আর সূচনা করলেন প্রায় 15 কোটি যে দলের সদস্য, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল, যে দল নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত, যে দলের প্রতিষ্ঠাতা একজন আদর্শ বাঙালি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ভারত কেশরী, সেই দলের বরেণ্য সভাপতি, তরুণ সভাপতি, ঊর্জাবান সভাপতি, পরীক্ষিত নেতা নীতিন নবীনজি, তাকে আমি স্বাগত জানাই এই বঙ্গভূমিতে। উপবিষ্ট আছেন আমাদের বাগ্মী নেতা, আমাদের শিক্ষিত নেতা, আমাদের এই রাজ্যের সভাপতি, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যিনি এই আদর্শের জন্য লড়াই করছেন, রাজ্যসভার সাংসদ, আমাদের সকলের সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়। আরেকজন শিক্ষাবিদ আছেন, সফল অধ্যাপক, এই রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, ভারত সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, তাকে যথাযথ সম্মান জানাই। উপবিষ্ট আছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, যার উপস্থিতি জয় এনে দেয়, মাননীয় সুনীল বনসলজি, বিহার সরকারের লোকপ্রিয় মন্ত্রী, আমাদের নেতা মঙ্গল পাণ্ডে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ, আমাদের বর্ষিয়ান নেতা মাননীয় দিলীপ ঘোষ, এবং এই সমগ্র ব্যবস্থাপনা যারা করেছেন তাদের মধ্যে রাজ্যের জিএস সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, নিশীথ প্রামাণিক, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, লোকপ্রিয় সাংসদ, পার্টির অন্যতম যুব মুখ, এবং সম্মানিত মঞ্চ। কারণ নীতিন নবীনজিকে বসিয়ে রেখে শ্রমিক দাও বেশি বলেনি, আমিও বেশি বলবো না। আমি শুধু একটা কথা বলবো যে আজকে এই কমল মেলাতে আমরা একটা ভীষণ স্বপ্ন নিয়ে উপবিষ্ট হয়েছি। সেই স্বপ্ন হলো বাংলাকে তার আগের জায়গায়, গৌরবের জায়গায় আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। আমি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজির কলকাতা মেট্রোর উদ্বোধনে দমদমের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলছিলেন, স্বাধীনতার আগে ও পরে বাণিজ্যিক ডেস্টিনেশন ছিল কোথায়? কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পে প্রথম কে ছিল? পশ্চিমবঙ্গ।
শিক্ষায় প্রথম কে ছিল? পশ্চিমবঙ্গ। আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করার কাজ কোত্থেকে হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গ থেকে। শিক্ষায় প্রথম কে ছিল? পশ্চিমবঙ্গ। সাহিত্যের প্রথম স্থান কার ছিল? পশ্চিমবঙ্গ। আজকে আমরা কোথায়? আমাদের শিক্ষা আজ শেষ। 19,000 বিদ্যালয় বন্ধ হলো। শিল্প আজ শ্মশান। যেদিন আমরা টাটাকে তাড়িয়ে দিলাম টাটা করে, সেদিনই শিল্পের কফিনের শেষ পেরেকটা পোতা হয়ে গেল। 6,888টা শিল্প চলে গেল। আর সাহিত্যের কথা নাই বা বললাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পড়ানো হলো মালদার চাঁচলে। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই। এই কমল মেলা থেকে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, এই স্বপ্নকে জাগাতে হবে। স্বপ্ন পূরণ তখনই হবে যখন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এই রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, নারীরা সুরক্ষিত থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র চরৈবতী চরৈবতী বলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। এই মাটি প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের মাটি। এই মাটি ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের মাটি। এই মাটি জগৎজননী মা শারদামণির মাটি। এই মাটি স্বামী বিবেকানন্দের মাটি। এই মাটি স্বামী প্রণবানন্দের মাটি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের হেডকোয়ার্টার কোথায়? কলকাতা বালিগঞ্জ। ইসকনের হেডকোয়ার্টার কোথায়? শ্রীলা প্রভুপদ প্রতিষ্ঠিত মায়াপুর নদিয়া। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের হেডকোয়ার্টার কোথায়? বেলুড় মঠ। গোটা পৃথিবীকে যারা আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করার কাজ করছেন, সেই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আজকে আরবি সংস্কৃতিকে আনতে চাইছে এই রাজ্যের সরকার। স্কুলের বইটা দেখবেন খুলে, ক্লাস 7-এর, সেখানে লেখা আছে আকাশ নয় আসমান। সেখানে লেখা আছে জল নয় পানি। সেখানে লেখা আছে কাকা নয় চাচা। সেখানে লেখা আছে বাবা নয় আব্বা। আরবি সংস্কৃতির হাতে বাংলা যেতে দেব না, দেব না, দেব না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড আমাদের রক্ষা করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। কমল মেলার সফলতা প্রার্থনা করে राष्ट्रीय सभापति के मेरा दिल से आभार प्रकट करते हुए मेरा भाषण मैं यही खत्म करता हूँ। और ए बछर 150 बछर वंदे मातरम, सबाई एक संगे बोलून वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजीर माटी थेके आवाज तुलुन जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। বঙ্গভূমিকে আমি প্রণাম করিছে। आज इस कमल मेला में हमारे साथ इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रमिक भट्टाचार्य जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इस राज्य के प्रभारी के रूप में लगातार अपना सक्रिय योगदान देने वाले आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुकांत मजूमदार जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में काम करने वाले निशिंत प्रमाणिक जी, पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी, हमारे सांसद सौमित्र दा जी, हमारे संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, सांसद ज्योतिराम महतो जी, विधायक आदरणीय लखन जी, हमारे जिला अध्यक्ष अभिजीत जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी मित्र पत्रकार बंधुओं,
और इस पवित्र भूमि पे इस कमल मेले के आज उस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी यहां पर अपने युवा साथी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज भारत माता की इस तस्वीर को हम लोगों ने प्रणाम करते हुए इस मेले की शुरुआत की है और मैं मानता हूं, मैंने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, भारत माता की तस्वीर का आज नमन किया और बंगाल की इस भूमि पर आकर इस कार्यक्रम से शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से मैं यहां पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भूमि राजा राम मोहन राय जैसे हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता की रही जिन्होंने पूरे देश को, पूरे भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। हम आज के दिन इस मेले के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इस राज्य के उस विषय को लेकर आगे बढ़े, जिन्होंने इस राज्य के साथ साथ देश को नई दिशा दी। आज के दिन हम अपने कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए हम कह सकते हैं आश्रम शिक्षा पद्धति को स्थापित किया, पुनर्जीवित किया और शांति निकेतन जैसे संस्था को स्थापना कर भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया। आज के दिन हम अपने वैसे कलाकार को भी याद करना चाहते हैं, आदरणीय नंदलाल बोस जी को, जिनके कला ने पूरे देश में ही नहीं हमें अलग पहचान दी। संविधान में उनके कई चीजें आज भी हम देखते हैं। हमारे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमें वैसा गीत दिया जिसकी हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने देश के विश्वास को, देश के उस पुनर्जागरण को, उस आजादी की लड़ाई को जीवित किया। और मैं कह सकता हूं इस भूमि ने ऐसे कई योद्धा दिए, ऐसे कई संत दिए, उसमें रामकृष्ण परमहंस का भी नाम बहुत अमूल्य अक्षरों में लिखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि युवाओं के प्रेरणा पुरुष विवेकानंद जी को भी हम कहीं न कहीं आज के दिन स्मरण करना चाहते हैं। अपने कई ऐसे कलाकार, प्रसिद्ध महानायक उत्तम कुमार को भी आज मैं याद करना चाहता हूं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपने खुद के कला के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और बंगाल की इस भूमि को पूरे विश्व में स्थापित किया। हम काजी नजरुल इस्लाम जी को भी याद करना चाहते हैं, जिनके प्रयासों से बंगाल की संस्कृति और बंगाल की कला को अलग स्थान मिलता रहा। आज हम सत्यजीत रे को भी याद करना चाहते हैं। इस कमल मेले के माध्यम से आज जिस प्रकार के सांस्कृतिक चीजों को, बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बंगाल की संस्कृति विरासत निश्चित रूप से अग्रणी रही है। हम लोगों ने देखा है कि पहले भी बंगाल की संस्कृति ने देश को दिशा दी है। हम उस बंगाल को देखे हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। और आज हम जरूर ये उन लोगों को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हम नई पीढ़ी को, जहां कला के क्षेत्र से भारतीय संस्कृति, बंगाल की संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, वही आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से उसका सांस्कृतिक विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी यहां से इस कार्यक्रम से मिलेगा। आज का दिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मेले का आयोजन कर कहीं न कहीं हमारे स्थानीय कलाकारों को, हमारे स्थानीय जो हमारे कुटीर उद्योग के लोग हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया है,
ताकि वो अपना व्यवसाय भी करें और उनके उद्योग, उनके छोटे छोटे व्यवसाय को भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बंगाल की वेस्ट बंगाल की हमारी इस यूनिट ने एक बेहतर स्वरूप में इस कमल मेले के माध्यम से जहां एक और सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाया है, हमारे कलाकारों को मौका दिया है, वहीं हमारे इन छोटे व्यवसायियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की इकाई को अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चले, क्योंकि आज का युवा राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आज के दिन मैं आनंदपुर में भीषण आग में जो हमारे श्रमिक मारे गए हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनके प्रति मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता परिवार, पूरा भाजपा परिवार उन परिवारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक एक परिवार के दर्द को अगर कोई बांट सकता है तो भाजपा का परिवार बांट सकता है। आज के दिन मेले के इस अवसर पे मैं आप सभी को पुनः इस मेले की शुभकामना देता हूं और मैं अपने प्रदेश इकाई से कहूंगा कि आप इसी प्रकार के इस कार्यक्रमों को अंजाम देते रहिए। हम बंगाल के लोगों के प्रति कटिबद्ध हैं, हम बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से संकल्पित हैं और बंगाल का युवा, बंगाल की महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ें, इसकी चिंता हमेशा हम करते रहेंगे। मैं आज इस अवसर पे, मां की ये भूमि है, हम दुर्गा के नवरात्रा से लेकर मां काली की पूजा की आराधना जब करते हैं तो किस प्रकार से बंगाल की संस्कृति पूरे देश में अपने आप में अलग स्थान बनाती है। और मैं कह सकता हूं कि मां के आराधना में, शक्ति की उस आराधना में हमारी मातृशक्ति को हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमेशा इस आराधना को आगे बढ़ाया है। हम आज के दिन अपने मां दुर्गा के उस पवित्र भूमि को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस पूरे शक्ति के हमारे पूजा को आगे बढ़ाया। मैं आज के दिन बंगाल के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि मां दुर्गा के माध्यम से आपने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, एक शक्ति में बांधा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार नारा लगाएं कि हम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का मना रहे हैं। भारतीय संस्कृति की, भारतीय विरासत को आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस वंदे मातरम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे